और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पे अजय माकन के साथ कुछ ही देर में प्रेस को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी यहाँ पे कुछ गुफ्तगू करते हुए वो अजय माकन के साथ, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं राहुल गांधी। Okay, friends, we are starting after the intermission. और आपको बता दें कि यहाँ पे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई भी प्रोग्राम राहुल गांधी का नहीं था। अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अचानक यहाँ पे पहुंच गए राहुल गांधी और अजय माकन को भी फौरन बुलवाया गया। यानी कि पहले से निर्धारित नहीं थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे अब से कुछ ही देर में मुखातिब होंगे राहुल गांधी प्रेस वालों से, मीडिया कर्मियों से। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पहुंचने का राहुल गांधी का कोई प्रोग्राम नहीं था, प्रेस को संबोधित करने का भी कोई यहाँ पे प्रोग्राम नहीं था। अजय माकन को भी तुरंत बुलवाया गया यहाँ पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। राहुल गांधी अचानक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पहुंच गए और अब यहाँ पे अब से कुछ ही देर में हम सुन पाएंगे राहुल गांधी को। Surprise visit, and this has been a, inviting Sri Ajay Makan ji, for a Meet the Press program has worked out to be a double blessing. It's a great, it's a blessing. Well, I don't want to. Rahul, hang on. I want to say something. Okay, I'll hang on. Okay, I'll hang on. Now, all I'm saying is that, his father Rajiv came here once. That was a great, wonderful surprise for us. Mr. Vig was then the Secretary General. He's sitting right there. And when he came, those OB vans were a completely new idea then. And the man who used to work in the club, the old employee who was no more, Mahesh, he ran to the Secretary General and said, साहब बहुत गड़बड़ हो रही है बात, आप जाके देखें तो बड़े बड़े ओबी वैन और पता नहीं क्या इस तरह के अजीबोगरीब यंत्र तंत्र जैसी चीजें थी। तो जब ये राजीव जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि वो भी आएगा, हमारा विकास और हमारी प्रगति इतनी तेजी से हो रही है और हम एक नए युग की ओर जा रहे हैं कि ये सारा रायसीना हिल पे ओबी वैन आपको भरे मिलेंगे, वो जमाना बहुत दूर नहीं है। So that was really a very, very enjoyable moment for us all, and so we are absolutely delighted to have Sri Rahul Gandhi here with us in our midst. Do ask the questions, but the same rules will obtain. Rahul will want to say something to begin with. And no, I'm not going to get into a long drawn press conference. No, this is a Meet the Press, it's not a press conference. Yeah, but I am entering the Meet the Press, I am making some of my opinions heard, and then I am going back to work. Okay? Now, let's see what happens. Okay. Let's start. I called up Makanji and I asked him, what is going on? What are you doing? I had some work with him, and he said that I am here with the press, Meet the Press. And I said, क्या बातचीत हो रही है? So he said, well, ordinance के बारे में बातचीत हो रही है. So I said, what? And he sort of gave me the explanation. He gave me the line, right? The political line that everybody will give you. The Congress will give you, the BJP will give you, everybody will give it to you. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay. The arguments that are being made, and I've heard the arguments, in my organization, the argument that is being made is that we need to do this internally. I'm telling you what is happening internally. We need to do this because of political considerations. Everybody does this. The Congress party does this, the BJP does this, the Janata Dal does this, the Samajwadi does this, everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. And I really feel that it's about time that political parties, mine and all others,
stop making these type of compromises. Because if we want to actually fight corruption in this country, whether it's us, the Congress party or the BJP, we cannot continue making these small compromises, because when we make these small compromises, then we compromise everything. So that's my position on the ordinance. Thank you. One by one. I'm not. Look, I'm not. Hold on. देखिए भैया, I am not interested in what any opposition leader says. I'm interested in what the Congress party is doing. I'm interested in what our government is doing. And I personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. Thank you. तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में राहुल गांधी यहां पे चंद मिनटों के लिए मुखातिब हुए मीडिया कर्मियों से और काफी महत्वपूर्ण बात यहां पे बोल गए अपनी ही सरकार के ऑर्डिनेंस लाने की बात पर, जहां पे दागियों मंत्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके खिलाफ अब सरकार यहां पे ऑर्डिनेंस लेकर आ गई है। और वहां पे राहुल गांधी ने साफ कहा कि अगर मेरा बस चले, मेरी निजी राय यह है कि इस ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक देना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि यही जरूरी है, अब वक्त आ गया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो ऐसे मुद्दे पर छोटे छोटे जो कॉम्प्रोमाइज हैं वो करना बंद कर दें, क्योंकि जब हम एक बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो बार बार हमें ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। उनका मानना है कि हर राजनीतिक दल इसी एक लाइन पर बात कर रहा है। मेरी पार्टी के अंदर भी मुझे यही समझाया जा रहा था कि ये एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज है और राजनीति के हिसाब से ये जरूरी है करना। हमारे मैनेजिंग एडिटर आशुतोष इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? अगर ये कहा जाए कि ये पूरी तरीके से कोरियोग्राफ था और ये जताने की कोशिश की गई कि दरअसल जैसे राहुल गांधी ने कहा कि भाई अजय माकन को मैंने फोन किया, आप कहां हैं, तो उन्होंने कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल लाइन दी और उसके बाद वो चले आए। उसके बाद वो कहते हैं कि इस अध्यादेश को फाड़ कर फेंक देना चाहिए था। इसके दो मतलब है। पहला मतलब इस बात को लेकर यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि इस पूरे मसले पर राजनीतिक तौर पर उनसे गलती हुई है। ये गलती किसकी तरफ से हुई है, ये बात की बात है। लेकिन कैबिनेट ने एक फैसला किया ऑर्डिनेंस लाने का, अध्यादेश लाने का, और उस अध्यादेश को बाकायदा कैबिनेट ने मंजूरी दी है और मंजूरी देने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया। उसके बाद घटनाक्रम बड़ी तेजी के साथ बदला। बीजेपी ने साफ तौर पे कहा कि वो इस अध्यादेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उसके साथ है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, अगर किसी भी आरोपी को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता फौरन ही रद्द हो जानी चाहिए। इसके विरोध में यह अध्यादेश लाया गया था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने पल्ला पटका है और उसके बाद से कांग्रेस के अंदर एक सुगहाट हुई कि राजनीतिक रूप से गलत फैसला हो गया है, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को दिलाने के लिए और साथ ही साथ जो कुछ भी घटनाक्रम था, जो डैमेज कंट्रोल था, उस डैमेज कंट्रोल को कम करने के लिए राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने ये बात कही। बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने आज क्या कहा। I tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. आशुतोष, अब ये भी हमें समझा दीजिए, जब राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी समझ से सरकार ये जो अध्यादेश लेकर आई है इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए, तो अब ऐसे में आम आदमी ये सवाल करेगा कि जब ये अध्यादेश लाया जा रहा था तो क्या तब राहुल गांधी को पता नहीं था? क्या पीछे से राहुल गांधी सरकार चला नहीं रहे हैं? देखिए, ये इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कैबिनेट का फैसला था, पार्टी के अंदर का फैसला रहा हो और इसकी जानकारी राहुल गांधी के ना हो।
लेकिन इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सब कुछ राहुल गांधी की जानकारी में हुआ और उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं उस राजनीतिक घटनाक्रम का एहसास कांग्रेस पार्टी को हुआ कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो उनको बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और बार बार इस पूरे मसले पर जिस तरीके से बीजेपी ने स्टैंड लिया है उसके बाद कांग्रेस के पास कोई मुंह नहीं रहेगा ये कहने के लिए राजनीति के अपराधीकरण को वो ठीक करने के लिए या उसको दुरुस्त करने के लिए उनका कोई कमिटमेंट है। तो मुझे लगता है कि एक आफ्टर थॉट था और उस आफ्टर थॉट के तहत पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को मिले, उस क्रेडिट को लेने के लिए पूरे घटनाक्रम को कोरियोग्राफ किया गया, एक तरीके से पूरा एक तरीके डरामा रचा गया और राहुल गांधी वह नाटकीय तरीके से प्रवेश करते हैं और उसके बाद सिर्फ एक सेंटेंस कहते हुए निकल जाते हैं कि इस अध्यादेश को फाड़कर फेंक देना चाहिए। इसमें 2-3 बुनियादी सवाल है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस को इस बारे में जानकारी नहीं थी? दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी के इस बारे में जानकारी नहीं थी? तीसरा सवाल, अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जानकारी नहीं थी तो यह कैबिनेट में किस तरीके से आया और कैबिनेट में किस तरीके से पास होकर पहुंचा? और मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इसको कांग्रेस पार्टी की जानकारी नहीं थी, राहुल गांधी को जानकारी नहीं थी और बिना इनकी जानकारी के इतना बड़ा फैसला जो है वो कैबिनेट में गया, कैबिनेट अप्रूव किया। अब एक तीसरा सवाल खड़ा होता है। तीसरा सवाल इस बात को लेकर जो हमारे यहां कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, उस कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का कैबिनेट एक फैसला किया और उस फैसले के बाद अगर पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक यानी सोनिया गांधी के बाद जो सबसे बड़े नेता हैं मनमोहन सिंह और राहुल गांधी, हैसियत प्रधानमंत्री की ज्यादा है लेकिन ताकत राहुल गांधी के पास है, अगर वो कहते हैं इस अध्यादेश को फाड़कर फेंक देना चाहिए था तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब साफ है कि जो कैबिनेट का फैसला था वो गलत था। अगर कैबिनेट का वो फैसला गलत था तो प्रधानमंत्री और तमाम जो कैबिनेट के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है इस पूरे मसले पर? क्या वो प्रधानमंत्री के लोग और जो कैबिनेट है उनका फैसला यह था कि अपराधियों का राजनीतिक अपराधीकरण होते रहना चाहिए? और अगर ऐसा था तो उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ी। मेरा साफ तौर पर मानना है दरअसल ये एक डैमेज कंट्रोल है, आफ्टर थॉट है, ड्रामाई अंदाज में राहुल गांधी नायक की तरीके से आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं इसको फाड़कर फेंक देना चाहिए, बिल्कुल उसी ड्रामाई अंदाज में और उस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप कर देते हैं। तो ये राजनीति है और राजनीति इसी तरीके से चलती है, कभी 2 कदम आगे चलते हैं और कभी 3 कदम पीछे ले लेते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि अगर वो इसको लेकर कदम आगे बढ़ेंगे तो उनको नुकसान होगा, इसलिए एक कदम पीछे खींच लिया जाए और राहुल गांधी को वो क्रेडिट भी मिल जाए कि देखो वो राजनीति के अपराधीकरण के कितने खिलाफ है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आशुतोष आपसे मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ। अक्सर देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर और कांग्रेस शासित द्वारा जब भी कोई सरकार होती है तो उसमें हमेशा 2 चेहरे खड़े किए जाते हैं, खास करके जो सीधे तौर पे पार्टी हाईकमान नहीं बोल सकता उसके लिए दिग्विजय सिंह जैसे दूसरे नेता होते हैं जो कि पार्टी की तरफ से दूसरी चीजों को रखना चाहते हैं। खास करके अगर माइनॉरिटी के हम अपीजमेंट की बात करें, तुष्टीकरण की बात करें तो कई बार ऐसे बयान आते रहे हैं और उसके बाद फिर कहा जाता है कि तुम चुप हो जाओ। लेकिन आज यहाँ पे पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, मिलिंद देवरा हो, वो जता रहे थे अपना विरोध की ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए था, क्यों नहीं आना चाहिए था, स्टैंडिंग कमेटी को कंसल्ट करते। लेकिन आज पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा या उन मौकों में से ये एक ऐसा मौका है जब राहुल गांधी खुद ही आ गए और खुद ही उन्होंने बोल दिया। सोनिया गांधी खुद ही आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, किसी बड़े मुद्दे पर सफाई दे दें, ऐसा कम ही हुआ है या हमने देखा नहीं है? ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी की पूरी जो नाटकीयता है ये इस घटनाक्रम को अति नाटकीय भी बनाती है और साथ ही साथ एक तरीके का एक हास्यास्पद स्थिति भी पैदा करती है। मैंने कहा ना कि इतना बड़ा फैसला हो जाए, कांग्रेस पार्टी को पता ना हो, इतना बड़ा फैसला हो जाए, राहुल गांधी को अंदाजा ना हो, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो निश्चित रूप से, लेकिन एक चीज और भी है कि अगर आप शुरू से कांग्रेस पार्टी को देखें तो सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच में लगातार एक तरीके का द्वैत बनाने की कोशिश की गई। बहुत सारे फैसले पिछले दिनों हुए हैं जिन फैसलों पर सरकार की राय अलग थी, कांग्रेस पार्टी की राय अलग थी। तो यह बड़ा कन्वीनियंट फॉर्मूला है कि भाई सरकार अगर गलत कर रही है तो सरकार की या अगर पब्लिक परसेप्शन में यह इंप्रेशन चला जाता है कि सरकार ने गलती की तो कांग्रेस पार्टी और संगठन इस स्थिति में रहती है कि भाई हम क्या करें, सरकार हमारी जरूर है लेकिन उसमें तमाम सहयोगी भी शामिल हैं और सरकार के इस फैसले के साथ हम नहीं खड़े क्योंकि चुनाव में जो है वो कांग्रेस पार्टी जाएगी, सरकार चुनाव में नहीं जाएगी और अंत में चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लड़ना है, मनमोहन सिंह को नहीं लड़ना है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही कन्वीनियंट फॉर्मूला भी है जो कांग्रेस पार्टी और सरकार दोनों को सूट करता है कि जो चीज पब्लिक परसेप्शन में गलत चले उसको आप किनारे से बाइकआउट कर लें या किनारे हो जाएं और ये कहें भाई ये तो सरकार ने किया, हम क्या करें। बिल्कुल। तो 2 चेहरे लेके चलना काफी आसान है कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी शासित द्वारा जो सरकार है उसके लिए। आशुतोष आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच प्रबंधन वर्मा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। प्रबंधन, और क्या खबर आपके पास?
देखिए, ये बेहद नाटकीय ढंग से ये पूरा जो पूरा इवेंट हुआ है वो हमें देखने को मिला है। प्रेस द मीट कार्यक्रम अजय माकन का था, जो कम्युनिकेशन और मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं कांग्रेस के, और वो अपनी बात कह रहे थे। हम लोगों ने उनसे सवाल जवाब करना शुरू किया था। उसी बीच उन्होंने खुद अनाउंस किया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन आया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट फोन अटेंड करके आता हूं। वो गए और उसी समय कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या हो सकता है, ये निश्चित तौर पर राहुल गांधी का फोन होगा। और उसके बाद वो वापस आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद आना चाहते हैं यहाँ पर और आपसे बात करना चाहते हैं। उसी समय एक अंदाजा लगने लगा था, क्योंकि ऑर्डिनेंस का मुद्दा ही इस पूरे प्रेस द मीट में सबसे ज्यादा उठ रहा था और उससे लगातार सवाल किए जा रहे थे और डिफेंसिव पोजीशन पे कहीं ना कहीं अजय माकन नजर आ रहे थे। लेकिन अजय माकन फिर भी इस ऑर्डिनेंस को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे थे और इससे आभास लगने लगा था कि पब्लिक प्रेशर, पब्लिक मूड जिस तरह का बना है, राहुल गांधी आके कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा सवाल जवाब नहीं करूंगा, मैं अपनी बात रखने आया हूं यहाँ पे। और क्योंकि ऑर्डिनेंस के बारे में बात हो रहा था, मैंने माकन जी से पूछा और मुझे लगा कि मुझे आपके बीच आना चाहिए। और सीधा उन्होंने ये कहा कि कूड़े के डब्बे में फाड़ के फेंक देना चाहिए ऐसे ऑर्डिनेंस को। यहां तक कहा उन्होंने कि ऑर्डिनेंस जो है वो नॉनसेंस है, किसी काम का नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि राहुल गांधी इस पूरे मजमे को लूटने आए थे और एक जो पब्लिक प्रेशर की वजह से स्टांस चेंज करना पड़ा है अब कांग्रेस को, उसका पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जाना था। ये पूरा तय हुआ था और उसी एक कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी यहां पर आए थे और उन्होंने पूरा एक तरह से कहें तो इवेंट को अपने नाम पे करने की कोशिश की। यहां पर आपको एक चीज और समझने की जरूरत है कि इस तरह की जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में लगातार करती आ रही है। अगर आपको याद होगा, अश्विनी कुमार और पवन कुमार बंसल के इस्तीफे का मामला था। लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते अश्विनी कुमार का इस्तीफा लेना और ये कहा जा रहा था साथ साथ कि सोनिया गांधी इस बात को लेकर बिल्कुल नाराज हैं। तो जो क्रेडिट है कांग्रेस में वो हमेशा गांधी परिवार को दिया जाता है, क्योंकि आखिरकार गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है और कहीं कुछ गलत चला जाता है, पब्लिक परसेप्शन से उल्टा कोई काम हो जाता है तो वो सरकार पे थोप दिया जाता है। और वहां पर कोई बाहर, आपको ये भी मैं याद दिलाऊं कि जिस समय दिल्ली रेप कांड हुआ था, जब पूरा देश उस पर खड़ा हो गया था, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी रात में अपने घर से निकली और वहां पे जो यंग लोग थे उनसे वो मिली, कोई बड़ा मंत्री लोगों से मिलने नहीं आया था। जाहिर तौर पे प्रबंधन, तो यहाँ पे जो चीजें हैं कांग्रेस में खास करके गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। गांधी परिवार एक ऐसा चुंबक है जो कि यहाँ पे पूरे कुनबे को समेटे हुए है, अपने कांग्रेस के कुनबे को समेटे हुए, और यहाँ पे क्रेडिट राहुल गांधी को देने की कोशिश की जा रही थी। आइए एक बार फिर सुनते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. In my organization, the argument that is being made is that we need to do this internally. I'm telling you what is happening internally. We need to do this because of political considerations. Everybody does this. The Congress party does this, the BJP does this, the Janata Dal does this, the Samajwadi does this, everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. And I really feel that it's about time that political parties, mine and all others, stop making these type of compromises. Because if we want to actually fight corruption in this country, whether it's us, the Congress party or the BJP, we cannot continue making these small compromises, because when we make these small compromises, that we compromise everything. So that's my position on the ordinance.